Hello. चार बजे तक Hello, good evening, students. Hello. Hello. मेरी आवाज आ रही है? Okay, fine. Wait for uploading the lectures. Walaikum assalam to all of you. Good afternoon to all of you. Today I am replacing Miss Mavish. It was not my class, but because Miss Mavish is on leave, that's why I'm taking your class. So remember the last lectures. What was it? What was our previous lectures? Walaikum assalam. Tell me. Can you answer me, please? हाँ मैं वेट कर रही, मेरा 5 पिछले 10 मिनट हो चले, मैं वेट कर रही हूँ। है हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो रिसेंटली आज वाला करना, आज वाला जो मैंने सेंड किया है, ठीक है। हेलो
Hello. So remember the last lectures? Hello. So today our new topic of self-directive learning. So today we will learn about self-directive learnings. Are you ready? So the most important about the self-directive learning is to, no matter how good teaching may be, each student must take the responsibility for his own educations. Maybe you are get familiar with this word, but if you know the exactly meaning of it, then you will come to know that what is self-directed learning. Self-directed mean खुद से खुद को direct करना for the learnings. So as a adult learners, how you can motivate yourself, how you can direct, how you can process your own mind on your learning, so that you will become a independent learner. So here are the objectives. How can I get my learners to unleash their imaginative and intuitive capacities through self-directive learnings? So as a learners, if we see the objectives of this topic, according to this topic, if you want to become a self-directed learner, you must unleash. You mean you need to be empower your imaginative or intuitive capacities. Mean जो आपके जो ज़हनी सोच है या आपके ख्यालात जो ideas हैं, ठीक है, you need, if you want to make the capable yourself to direct yourself, mean you can direct your own learning and you can find your own way to learn. How do I get learner to accept responsibility for their own learnings? In this topic, the learner will be able to take their or accept their responsibility for their own learning, and what are some cognitive strategy that can help my learner retain, order, and comprehend new informations. So cognitive strategy, do you have an okay, thanks ma'am, I found on. So are you with me on topic? Did you understand the topic titles? So topic title is self-directed learning. Self-directed learning means make the learner dependent so that they can direct themselves, they can guide their mind, they can direct their learning, or they can find the way to find the more further learnings. So how can I get my learners to unleash their imaginative, intuitive capacity through self-directive learning? Mean how they can empower or force their imaginative or intuitive, mean that is maybe their ideas or opinion, maybe it's not true, that is maybe their own feeling, so they can clarify all the doubts by their self to find the way, what is the direct path to go ahead. So how do I get learner to accept a responsibility for their own learnings? Mean अडल्ट इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद से हैंडल करना और उनको एक्सेप्टेंस आ जाएगी. व्हाट आर सम कॉग्निटिव स्ट्रेटजी दैट कैन हेल्प माय लर्नर रिटेन, ऑर्डर, कॉम्प्रिहेंड न्यू इंफॉर्मेशंस.
so they can frame their own mind thinkings. मीन कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल प्रोसेसेस टू एक्वायर द नॉलेज, ठीक है। सो इसमें ऐसी वो टेक्स्ट सीख जाएंगे कि वो किस तरीके से चीजों को लर्न रिटेन कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसको, एनी न्यू इंफॉर्मेशंस। So how can I engage my learner in project-based learning? Whenever we are assigning some topic or giving them the scenario or any life event, situation, academic, personal, professional, so they can find the better way to engage or to solve the problems. How can I promote the goal of self-directed learning in a culturally diverse classrooms? Through this self-directed learning, the learner will be able to achieve all the goals they in the diverse society or in the diverse classroom, in the diverse situations where all the person's belief values is matter. Because people belongs to different culture, people belongs to different, so once you know how to individually deal or how and on the community base at the patient's individual levels, so you will be able to find the correct decisions and accomplish your task and goal and motivate your learning. Self-directed learning, in self-directed learning इसको हम क्या कहते हैं, SDL भी कहते हैं. In the individual take the initiative and the responsibility for what occurs. Individuals select, manage, assess their own learning activities which can be pursued at any time, in any place, through any means, at any age. Once you know how to take the individual, क्या हो जाता है, responsible बन जाते हैं. They are taking the initiative. ये खुद से अपने लिए खुद से initiative लेते हैं, खुद से चीज़ों को खुद से देखते हैं, find करते हैं, ठीक है, और अपनी responsibility समझते हैं, ठीक है. Individual क्या करता है इसमें, individual select करता है, खुद से manage करता है, अपने आप को, अपनी learning को खुद से find करता है, और क्या करता है, that can be pursued at any time. ये किसी भी वक्त की जा सकती हैं, जरूरी नहीं कि इसके लिए स्पेसिफिक टाइम है, आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, किसी सिचुएशंस में कर सकते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं. Self-directed learning is an approach to teaching and learning that actively engages students in the learning process for the purpose of acquiring outcome at higher level of cognitive complexity. ये एक ऐसी टीचिंग लर्निंग की अप्रोच है जिसमें हम स्टूडेंट को क्या करते हैं, एक्टिवली एंगेज कर देते हैं. के वो अपने माइंड को खुद से डायरेक्ट कर रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आई पुट द कोटेशन ऑफ आइंस्टाइन की, इसने बड़ी अच्छी कोटेशन यहाँ लिखी है कि आइंस्टाइन कहते हैं कि आप विदाउट इमेजिनेशन, आप कभी भी कोई भी थिंकिंग ऐसी नहीं जिसमें इमेजिनेशन के बगैर आप कोई भी थिंकिंग क्रिएट नहीं कर सकते हो. मुझे इसकी कोटेशंस बहुत अच्छी लगती है, ठीक है. तो उन्होंने कहा है कि भाई आपने जब तक कि कोई इमेजिनेशंस नहीं होती, आप कोई भी थिंकिंग क्रिएट नहीं करता. बिफोर थिंकिंग देयर इज इमेजिनेशंस, देयर इज अ आइडिया, देयर इज ओपिनियन, देन यू विल think about and that is your thinking, then you can further proceed the things, ठीक है. आप अपनी लर्निंग को खुद से, before any thinking there must be imagination. Without imagination you cannot be a good learners, ठीक है. जब आप इमेजिनेटिव होंगे, आपके अंदर क्वेश्चंस होंगे, आपके अंदर आइडियाज आएंगे, वो फिर आपकी थिंकिंग को डेवलप करेंगे. जब आपकी थिंकिंग डेवलप होगी तो आप फर्दर आप इसको खुद से फर्दर इसको आप एक्सप्लोर करेंगे, लर्न करेंगे, डिटेल इसको लर्न करेंगे, ठीक है. तो ये क्या करता है, आपकी हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी में आपको प्रमोट करता है. कैसे करता है हायर कॉग्निटिव, आपने देखा है कि मैंने आपको पढ़ाया होगा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, उसके अंदर 6 कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 मैंने आपको कैटेगरीज पढ़ाई थी. 6 कैटेगरीज में जो सबसे पहली है नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड अप्लाइंग. आपने देखा कि जितने भी जूनियर लेवल्स के होते हैं, जो मतलब मॉन्टेसरी लेवल में हम जब मैट्रिक तक भी हम समझ लेते, तो हम क्या होते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, नॉलेज लेते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी आर अप्लाइंग इन आवर रियल सिचुएशंस. सो इट्स लाइक दैट. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू क्रिएट अ हायर, सो आफ्टर दैट अगर आप उसको हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज को देखना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉग्निटिव एबिलिटी मीन कि आपने देखा कि जितने भी जूनियर लेवल्स के लर्नर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों को देखें, तो उनमें क्या होता है, पहले वो क्या कहते हैं, नॉलेज को टीचर से सीखते हैं. नॉलेज
फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देन आफ्टर दैट उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये एक लोअर ऑर्डर जो है आपकी थिंकिंग होती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज होती है, तो इसमें हम अडल्ट लर्नर्स को क्या बना रहे होते हैं, इनको इंडिपेंडेंट लर्नर बनाते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनाओगे तो देयर इज एन अदर कॉग्निटिव डोमेन जो इसके अंदर फॉल करेंगे। वो कौन से होंगे, वो आपका होगा एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, एंड क्रिएट करना, एवेलुएट करना। दैट आर द हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, इसमें हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। इज दैट क्लियर विद यू? Right? Okay, thank you. So self-directed learning involving the following sequence of the activities provide informations about when and how to use mental strategies for learning. थ्रू सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग आपकी एक सीक्वेंस बन जाती है कि आपने फर्स्ट आपने अपनी मेंटल स्ट्रैटेजीज को फॉर द लर्नर्स आपने उनको किस तरीके से गाइड करना है। आपने इलस्ट्रेट हाउ द स्ट्रैटेजी टू बी यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल प्रॉब्लम। मीन इलस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को आपने जब बताया तो आपने इसको ड्रॉ करके भी बता रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज को इस तरीके, जब आपके जो लर्नर्स अगर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो आप उनको फर्दर तरीके से भी एक्सप्लोर करके फर्दर उनको ड्रॉ करके किसी भी चीज को आप फर्दर क्लियर करके उन क्लैरिटी के साथ आप उन चीजों को पढ़ा सकते हो, बता सकते हैं टू बिकम द सेल्फ डायरेक्टिव लर्नर। Okay, so as I told you in the previous slides, there is a cognitive domain के बारे में जैसे मैंने बताया था, मैंने ये एक इसका पिक्चर डाल दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ के मैंने इसके 6 डोमेन कॉग्निटिव डोमेन के 6 कैटेगरीज डाल दिए, जिसमें है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशंस, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशंस। सो ये जो फर्स्ट 3 हैं, ठीक है, आप जैसे मैस्लो हायरार्की पढ़ते हैं ना, मैस्लो हायरार्की में हम नीचे से इसको जो ऑर्डर्स हैं उसके नीचे से हम डाउन टू अप जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डाउन से पढ़ना है। जैसे नॉलेज फर्स्ट है, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है, थर्ड एप्लीकेशंस है। तो इसमें आपने देखा है कि बच्चों में क्या होता है, एबिलिटी टू रिमेंबर द फैक्ट विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग, कलेक्ट, डिफाइन, डिस्क्राइब। इसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं, कलेक्ट करना, डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, ये इसके वर्ब है। जब भी हम नॉलेज को हम यूज करेंगे तो हम उनके लिए क्या टर्म यूज कर सकते हैं या क्या वर्ब यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, नॉलेज के लिए कलेक्ट, डिफाइन, डिस्क्राइब, फाइंड, आइडेंटिफाई, लिस्ट, मेमोराइज, नेम, ऑर्डर, आउटलाइंस, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, रिपीट, शो एंड स्टेट। सो कॉम्प्रीहेंशंस के जो कंपोनेंट हैं इसको फर्दर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट लर्नड इंफॉर्मेशंस। ठीक है, सो इसका मतलब होता है कि आपने जो कुछ अंडरस्टैंड किया था वो अच्छे तरीके से आपने उसको इंटरप्रेट करके अपने ओन वे में भी उसको आपने खुद से भी उसको देखना कि आपने उससे क्या जो है एब्स्ट्रैक्ट क्या किया है। ठीक है, क्लैरिफाई करना है, कॉन्ट्रास्ट है, इसके लिए हम ये टर्म यूज कर सकते हैं, क्लैरिफाई करना, कॉन्ट्रास्ट करना, कन्वर्ट करना, डीकोड करना, डिफेंड करना, डिस्क्राइब करना, डिफरेंशिएट करना, डिस्कस है, डिस्टिंग्विश है, एक्सप्लेन है, इलस्ट्रेट एंड प्रेडिक्ट। So in the third part, applications. The applications, you know, we are always, as a nurses, we are always using this term applications while caring the patients. Ability to use learn material in the new situations. आपने जो भी चीजें सीखी है, आपकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने नॉलेज को, जो आपने चीजें लर्न की है, आप उसको नई सिचुएशन में यूज कर सको, जो आप उसको क्या है अप्लाई कर सको। सो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे अप्लाई, असेस, कैलकुलेट, कंप्लीट, कंप्यूट, डेमोन्स्ट्रेट, डेवलप, एग्जामिन, इंटरप्रेट, प्रोड्यूस, सेलेक्ट, शो, ट्रांसफर। सो इज इट क्लियर विद यू? राइट। एनालिसिस इज द, ये जो मैंने 3 आपको बताई हैं ये क्या है, लोअर ऑर्डर आपकी थिंकिंग्स है। जैसे मैंने आइंस्टाइन की आपको एक कोटेशंस आपके साथ मैंने कोट की था उन्होंने कहा है कि बिफोर थिंकिंग देयर शुड बी इमेजिनेशन, विदाउट इमेजिनेशन वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन थिंकिंग। सो बिफोर द थिंकिंग इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू द कंपोनेंट। when there is a situation is a critical and you are not able to understand, so you can make the part or sections। ठीक है, आप उनको चीजों को तोड़कर समझ सकते हो। इसको हम कहते हैं एनालिसिस करना किसी चीज को, यानी कि अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को आपने डेवलप करना थ्रू द डिफरेंट, आपने डोमेन के इन कंपोनेंट में अपने अपनी एबिलिटीज को, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को अपने डेवलप करना है। एबिलिटी टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू इट्स कंपोनेंट, इसके लिए हम टर्म यूज करें, एनालाइज करना, अप्रेज करना, ब्रेक डाउन, कैटेगराइज कर लेना, कंपेयर कर लेना, कनेक्ट, क्रिटिसाइज, डिफरेंशिएट, डिवाइड, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट एंड, ठीक है,
अगेन उसने एग्जामिन का वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। सो सिंथेसिस का मतलब होता है कि जैसे हमने क्या अबिलिटी टू पुट पार्ट टुगेदर, अब हमने उन पहले तो उनको हमने उनके पार्ट को करके हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब उन सारे पार्ट को इकट्ठा करके आपने उसमें से आपने उसकी एक स्टेटमेंट को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा टर्म है, आपको समझ नहीं आ रही, आपने उसको छोटे छोटे करके उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड किया, फिर आपने उसको सिंथेसाइज यानी कि उनको सारों को इकट्ठा करके आपका होल कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अरेंज, असेंबल, कंबाइन, कंपाइल, कंपोज, कंट्रास्ट, क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, जनरेट, invent, make, plan, prepares. So this is the part of synthesis. So the last is six जो इसका component है is the evaluations. कि जब आपने सारी चीजें कर रही है, do you have the ability to evaluate yourself, evaluate your thinking, evaluate your learning, ठीक है। आपने खुद को जज करना है, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग के में आपकी मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है वो बहुत मैटर करती है, इसलिए आपके अंदर ये लोअर ऑर्डर नहीं, अडल्ट लर्नर के अंदर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज आप कभी भी वो ऐसे लगता है कि जैसे आपने किसी से चीज को सीखी, कट कॉपी पेस्ट करके आपने वो काम कर लिया, ठीक है। लेकिन आपकी एबिलिटी अडल्ट लर्नर आप तब बन सकते हैं जब आपके अंदर एबिलिटी खुद से चीजों को प्रोड्यूस करना, खुद से उनके मीनिंग जनरेट करना और खुद से उसको एवेल्युएट करना है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, एबिलिटी टू जज वैल्यूज और मटेरियल फॉर गिवन पर्पस, अप्रेज, आर्ग्यू, कंक्लूड, कन्विंस, criticize, decide, evaluate, grade, interpret, judge, rate, recommend. So these are the component of, मैंने आपको जैसे वो पढ़ाया था ना, ब्लूम बेंचमैन की थ्योरी पढ़ाई थी आपको, तो उसके थे हमने पढ़े थे इसके 3 डोमेन है एक्चुअली। इसमें कौन सा है, फर्स्ट है कॉग्निटिव, दूसरा कौन सा है, वो है क्या उसको कहते हैं, सॉरी मैं भूल गई उसको क्या कहते हैं, जिसमें फीलिंग्स आ जाती हैं हमारी, ठीक है, और साइकोमोटर्स। साइकोमोटर्स में क्या होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव में हम अपने मेंटल स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर फीलिंग्स में जो आ जाता है वो हमारी आ जाता है कि हम उसके बारे में क्या सेंस करते हैं, हमारा माइंड कितना एक्सेप्ट करता है, और फिर हम अपना हाथ यूज करते हुए, यानी कि साइकोमोटर स्किल्स के जरिए, हैंड स्किल्स के जरिए अपने नॉलेज को, अपने माइंड को कमांड करके हम उस नॉलेज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लूम टैक्सोनॉमी. So today we'll talk about the self-directed learning. Actually, self-directed learning है क्या? Provide student the opportunity to restructure content in the term of their own ways of thinking and prior understanding. Gradually shift the responsibility for learning to the student through activities, exercise, dialogue, discussions that engage them in the increasingly complex pattern of thought. सो इसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी थ्रू सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग, यानी कि आप उनको टॉपिक दें, वो खुद से इनसे पूछें, चेक देयर माइंड, चेक देयर आइडिया, चेक देयर स्ट्रैटेजी, व्हाट आर यूजिंग द स्ट्रैटेजी, हाउ दे आर फाइंडिंग द वे, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम स्टूडेंट्स को क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो खुद क्या कर सके, खुद से रिस्ट्रक्चर करें अपने कंटेंट को, ठीक है, इन द टर्म ऑफ on their own way of thinking and prior understanding, कि उनको पहले से क्या अंडरस्टैंडिंग है। Gradually shift the responsibility for learning to student through activities, exercise, dialogues, discussions that engage them in increasingly complex pattern of thought. तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता को किस चीज पर क्या कर रहे होते हैं, ग्रेजुअली शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग टू द स्टूडेंट थ्रू एक्टिविटीज। फिर आप उनको यानी कि खुद से वो क्या कर रहे हैं, आप उनकी हैबिट को क्रिएट कर देते हो कि वो खुद से क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो एक दूसरे से डिस्कशंस भी कर सकते हैं, डायलॉग्स कर सकते हैं, ताकि वो क्या करें, इंगेज रहें इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ थॉट। सो माय फेवरेट लीडर एंड in the Christianity, he is the founder of Protestant missions. ये इसने प्रोटेस्टेंट का एक अपनी एक मिशनरी बनाई थी, और इसने जो इसकी कोटेशंस बड़ी खूबसूरत है। I always like to, and I'm very impressed with these quotations. According to him, he said that if you cannot fly, then run. If you cannot fly, then run. आप उड़ नहीं सकते, then fly. If you cannot fly, then walk. And if you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Martin Luther King
ठीक है। सो ये इसकी कोटेशन थी, बड़ी खूबसूरत कोटेशंस है। आई ऑलवेज लव दिस कोटेशंस कि ये हमें बड़ी मोटिवेशंस देती है कि एटलीस्ट के जब हम उड़ना चाहते हैं लेकिन शायद हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते या हमारे पास ऐसे बैरियर्स होते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट रन। जब आप रन भी नहीं कर सकते तो आप चलें, जब चल नहीं सकते तो एटलीस्ट वट एवर इज द वे यू नीड टू फाइंड द योर ओन लर्निंग, यू नीड टू find your own way, at least moving toward the destiny। ठीक है, तो ये आपने एटलीस्ट स्क्रॉल करें लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड रखें। ये सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग के बारे में उन्होंने कोटेशंस बड़ी अच्छी कही है। So learner need to become a master of their own plans, destiny. After all, they are ones responsible for their own outcomes, mental function using a tool of thought. Learners, यहाँ पे उसने बड़ी ये एक और कोटेशंस है, Vygotsky ने कहा है 1978 में, इसका पेज नंबर 126 में है, there is a no elevator to success, you have to take the stairs। कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आपको ऊपर चीज लेके जाएगी तो आप क्या करोगे कि आप ऊपर चले जाओगे, या आप कोई ऐसा एलिवेटर जैसे किसी चीज ने आपको जादू की ताकत से उठाया है तो आपने कामयाबी हासिल ऐसे नहीं होती। You have to take the steps, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। Like I quoted the Martin Luther quotations over here। So there is for this self-directed learning environment also very important। Direct and indirect। Direct में क्या है? Comfort, temperature, light, sound, seating arrangement, climate control, refreshment। Indirect में क्या जाता है? Respect है और non intimidating, नॉन जजमेंट, इनफॉर्मल, ओपन एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजीज फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में मोटिवेटिंग टुडे लर्नर्स क्या कर सकते हैं? ठीक है, इज इट ओके विद आई एम विजिबल देयर? हाँ, ब्लड इज राइट, चलेगा सब। Strategies for self-directed learning, motivating today learner। So define the concept of self-directed learning। सबसे पहले आज के इस टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, मैंने इसका ओवरव्यू और आपको एक इसका डेप्थ चीज बता दी, एक डेप्थ क्या कहना चाहिए उसको एक्सप्लोर किया है कि आपके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, कि आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनने के लिए क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स। Describe the 14 characteristics of intelligent behavior that foster self-directed learning। Develop strategies for motivating today's surgical टेक्नोलॉजी लर्नर। सर्जिकल टेक्नोलॉजी आप जो आजकल यूज करते हो, वेपन जो आपके हथियार हैं जो आप पेशेंट केयर के लिए यूज करते हो, आपने प्रॉपरली उसको स्ट्रैटेजी यूज करते हुए कि आपने खुद को अपने जो चीजें सीखते हो उसको आपने अप्लाई करना है, सेफली हैंडल टू द पेशेंट, क्रिएट लेसन प्लान दैट फोस्टर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग and self motivations। So brainstorming, if I'm going to tell you the one scenario over here, like for example I'll give you any topic, आपने brainstorming समझते हो, getting the idea from the ideas। ठीक है, कि आप you can create a one group and getting the different people individually opinion कि आप इस चीज के बारे में क्या समझते हैं, आप इस चीज के बारे में क्या समझते हैं, what do you have an idea about। तो brainstorming का मतलब था collecting the idea from the another people। ठीक है, फिर हम जो मोस्टली जिनकी जैसे अच्छी जो कमेंट है, जो उनके आइडियाज जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, अपना एक टॉपिक की स्ट्रेंथ बनाते हैं, हम और उस पर फर्दर उस पर लर्निंग को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग, अडल्ट लर्नर कैन नॉट बी थ्रेटन। आपने उसने देखा कि जो भी अडल्ट लर्नर होते हैं हम उनको थ्रेट नहीं कर सकते, हम उनको क्या कर नहीं सकते, उनको कोरेस्ट का मतलब होता है कि आप उनको फॉलो करना, यानी कि फोर्सली उनको नहीं कह सकते, या आप किसी ऐसी ट्रिक्ट का मतलब होता है यानी कि कनिंग वे में किसी चीज को धोखा देना या डिसीव करना। डिसीव करना, कनिंग का मतलब होता है क्या होता है, क्लेवर होता है। ठीक है, उसको डिसीव का मतलब धोखा होता है। ठीक है, सो आपने इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी है। तो आपने एडल्ट लर्नर्स में आपने डील दैम बिकॉज दे आर अडल्ट,
जस्ट गाइड देम, everyone is learning in होल लाइफ। मैंने जैसे आपको बताया लर्निंग इज बॉर्न टू टॉम, ठीक है, वो पैदा होने से लेकर डेथ होने तक हमारे इस वॉलनट से लेकर हमारा जो होल ऑफ द ग्रेवयार्ड है उस तक, हम माँ के होल से लेकर कब्र के होल तक, अब जब तक हम जाते हैं हमारी लर्निंग रहती है। लर्निंग एक्सपीरियंस एडल्ट सीक आउट ऑन देयर ओन are directly related to life changes event that trigger the seeking, ठीक है। सो जो अडल्ट की लर्निंग है वो क्या होती है, पूरी जिंदगी हम लर्न करते रहते हैं, बट आप उनका क्या होता है इसमें का खुद से डायरेक्टली अपनी लर्निंग को खुद से फाइंड करते हैं रिलेटेड टू द लाइफ चैलेंजेस और चेंजेस और इवन दैट ट्रिगर द सीकिंग। जो उनकी मोस्ट क्वेरीज होती हैं वो उनके बारे में खुद को एक्सप्लोर करते हैं, गाइड करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। सो इंक्रीजिंग और मेंटेनिंग वन सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। अगर हम सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग में क्या हो जाता है कि हमारे अंदर क्या चीज बढ़ती है, क्या चीज ज्यादा हम अपने आप को, अपनी सेंसेस को क्या करते हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपनी रिस्पेक्ट को, जब हम खुद से चीजों को मैनेज करेंगे, अपनी सेंस को, हमारी सेंसेस काम करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से उसका अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारी सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट भी आप गेन करेंगे, आपको स्ट्रांगली आप खुशी महसूस करेंगे, ठीक है। और क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी मोटिवेटर फॉर एंगेजिंग इन लर्निंग एक्सपीरियंस। और इसका जो सेकंड जो चीज है वो आपको अपनी लर्निंग से जोड़े रखेगी, ठीक है। द लर्निंग एनवायरनमेंट मस्ट बी फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल कंफर्टेबल, मीन कि आपकी जो लर्निंग है वो मेंटली और फिजिकली जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, ताकि आप बेटर लर्न कर सके। आप स्ट्रेस में हैं तो भी आप प्रॉपर लर्न नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कोई लाइट प्रॉपर नहीं है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने देखा था, ठीक है, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब आप किसी सिचुएशन में मेंटली या फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप प्रॉपर लर्न नहीं कर सकते। सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर इज कंटिन्यूअल लर्नर्स। क्या होता है, ये कंटिन्यूअल लर्नर होता है। अगर आप स्टॉप कर देंगे तो आप कभी भी if you stop learning whether at 20 or whether at 18, 20 or 80s, it's the same। अगर आपने लर्न नहीं किया तो कुछ भी नहीं है। अगर आप 80 में भी लर्न कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ। who uses a multitude, यानी कि आपने मल्टीपल वे से सोचना है। who uses a multitude of thinking strategy to maximize his or her own learning due to societal changes, student need to learn the स्किल्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टनेस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लर्निंग को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं टू मैक्सिमाइज, अपनी लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं बिकॉज ऑफ द सोसाइटल चेंजेस, ठीक है। कुछ भी हो सकती हैं। स्टूडेंट नीड टू लर्न द स्किल्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टनेस, यानी कि उनको पता नहीं है कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी चीज़ें मोटिवेट कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें आपको, कौन सा राइट वे है, व्हाट आर द राइट रिसोर्सेज, वेयर टू गेट द राइट रिसोर्सेज, आप कहाँ से ले सकते हैं। तो ये जब सब चीज़ें आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजी होंगी तो आप अपनी लर्निंग को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो आई कोटेड ओवर वन कोटेशंस ऑफ चाइनीज प्रोवर्ब, इसको कहते हैं टीचर ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ। टीचर ने आपके लिए डोर, लेकिन जब आप खुद से अंदर नहीं आएंगे आप कोई चीज को भी प्रॉपरली, इसका मतलब है कि आप लर्न नहीं कर सकते। उसने तो डोर खोला है, आप जाएंगे तो सीखेंगे, अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अंदर क्या है। लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे नहीं, जैसे कहते हैं कि पानी में जब आपने पानी की गहराई की देखनी है, इफ यू वांट टू नो द डेप्थ ऑफ द वाटर यू नीड टू एंटर इनटू द वाटर्स। आप पानी के अंदर जाए बगैर किसी पानी की गहराई को नहीं पता चला सकते कि कितना गहरा है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इट इन्वॉल्व अ कंटिन्यू प्रोसेस। इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका कंटिन्यूअल प्रोसेस को करने के लिए ये 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सेल्फ मैनेजमेंट, आपकी सेल्फ मॉनिटरिंग, आप खुद को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और उसके लिए खुद को मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड सेल्फ मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो सेल्फ मॉडिफिकेशंस में आपकी चीजें आ जाती है। मैं आपके साथ फर्दर इस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट क्या चीज होती है। एस्टैब्लिश क्लियर गोल। जब तक कि आपने अपने आप को गोल ही अपना प्लान ही नहीं किया कि आपने करना क्या है, आप खुद से अपने गोल में क्लियर नहीं है, तो आप कभी भी खुद को गाइड नहीं कर सकेंगे। आपके पास अनक्लियर वे होगा जिसमें आपको पता नहीं होगा
टू मच रशिंग थिंग होगी, आपने चीज़ों को क्लियर ही नहीं किया है, ठीक है, तो फिर आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ जाना और किधर जाना है, और अगर अटक गया तो कैसे उसको फर्दर फाइंड करना है। थॉरली गैदर इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन को थॉरली गैदर करना है। परसिस्टेंटली स्टे विद टास्क, जब तक विदाउट परसिस्टेंस इवन हाउ मच यू आर इंटेलिजेंट, if in your personality persistence is not present, you will never achieve any task in your life. Is it clear? So this means persistence is very important. Use a systematic approach to the problem solving, organizational planning and decision making. Mean systematic approach to the problem. Whenever you are countering the problems, you need to approach systematically. मेन जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या प्लानिंग करेंगे या डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करें, यू नीड टू फॉलो द सिस्टमैटिक अप्रोच, सो विच इज रिकमेंडेड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने देखा कि हमसे पहले क्या करेंगे, डेटा गैदर करेंगे, ठीक है, अल्टरनेटिव देखेंगे। आपने देखा होगा कि एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, आम जिंदगी में डिसीजन मेकिंग करते हैं या कोई प्रोसेस करते हैं, तो उसके एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसके जरिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, यूज आर्टिकुलेट थॉटफुल कम्युनिकेशंस। आपको अपनी कम्युनिकेशंस को, आपको पहले क्या करना पड़ता है, चीज़ों को आर्टिकुलेट करना पड़ता है, अपनी कम्युनिकेशंस को थॉटफुल बनाना पड़ता है, अपने पर्पसेस को क्लियर करना पड़ता है, अपने पाथ को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। देन इट विल बी अ कंटिन्यू प्रोसेस। मैनेजमेंट वंस ओन बिहेवियर एंड रिसोर्सेज, फिर आपने अपने आप को भी देखना, अपनी रिसोर्सेज को देखना, अपनी चीज़ों को देखना है, ठीक है। आपने कहाँ से कौन सी चीज़ ली, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से खुद के मेरे जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे क्लियर करना है, कौन सी रिसोर्सेज में जाना है, कहाँ से मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज आउटसाइड वन सेल्फ, आपने अपनी रिसोर्सेज से हट के भी चीज़ों को देखना है। सो सेल्फ मॉनिटरिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कंसिडरेशन ऑफ द रेमिफिकेशंस ऑफ द थॉट, प्लान्स, डिसीजन, एक्शंस, ठीक है। आपने इन चीज़ों को भी बहुत देखना है, ये चीज़ें बहुत कंसीडर करती हैं आपके डिसीजंस में, प्लान में, एक्शंस में। मेटा कॉग्निशंस, मेटा मीन होता है बियॉन्ड और कॉग्निशंस में होता है मेंटल एक्ट और प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपने मेंटल्स को, आपने अपने माइंड के सर्किट से हटकर भी चीज़ों को उसकी गहराई तक जाना है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली मॉनिटरिंग वंस ऑन थिंकिंग, ठीक है। जब आप कोई भी चीज़ों को पढ़, यानी कि कॉग्निशन टू कॉग्निशन, नॉलेज टू नॉलेज, थिंकिंग टू थिंकिंग, यानी चीज़ों को आपने, आपके पास सोच है, आपने सोच से सोच को क्रिएट किया है, आपके पास नॉलेज है, आपने नॉलेज से फर्दर नॉलेज को हाइड किया है। सो दिस इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन, मीन चीज़ों को आपने डिटेल में उनको समझना होता है। Self modification, revises strategy and strive to maximize his or her effectiveness based on feedback. आपने modifications के लिए क्या करना है कि आपने जो कुछ भी जो चीज़ें की हैं, you need to modify again, ठीक है। आपने रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि अपनी चीज़ों को आप ज़्यादा लेवल, मैक्सिमाइज लेवल पे उसको अचीव कर सकते, उसकी इफेक्टिवनेस को और अपनी फीडबैक को अचीव कर सकें। सेल्फ मॉनिटरिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। आप खुद को देख सकते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग का फायदा ये भी होता है कि आप एवेलुएट खुद को कर सकते हैं कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वाज राइट, ठीक है। एवेलुएशंस में हम दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने नर्सिंग प्रोसेस में देखा कि हम पेशेंट की एवेलुएशन जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का फीडबैक क्यों ले रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज़ अफेक्टिव है और कौन सी चीज़ अफेक्टिव, ताकि हम दोबारा से उसको मॉडिफिकेशन कर सकें, उसमें चेंज कर सकें। A process of reflecting on one's own thinking, pattern, plan, decision, and actions. So self modifications में हम एक और पॉइंट में ऐड करते जाऊँ यहाँ पे, the change in one's behavior based on data gathered during self monitoring and on the feedback received from the others. ठीक है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने खुद से क्या चीज़ें इकट्ठी की हैं, उनका क्या है। आपने खुद को देखना है कि उसमें कोई मिस्टेक है, और या फिर आप दूसरों की फीडबैक से ले सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्स क्या होता है, सेल्फ एवेल्युएशन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। The one of the important tools as an instructor to help your learner to learn, model, teach. हम क्या कैसे उनको बता सकते हैं कि वो क्या लर्न करें, कौन सा मॉडल फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से टीच कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या स्किल्स हैं, what is the behavior and where we need to modify our behavior, our skills and process. Here are the one quotation are quoted over here. It will complete the above mentions this text.
The great teacher never strive to explain his visions. He simply invite you to stand beside him and see yourself. ठीक है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कोटेशंस कि आपने अगर देखना है कि एक ग्रेट टीचर्स किस तरह अपनी सक्सेस को, वो आपको विजन्स नहीं देता, वो क्या करता है टू एक्सप्लेन, वो अपना विजन नहीं बता रहा होता कि मैंने क्या करना है, मैं क्या हूँ. ही सिंपली इनवाइट यू स्टैंड बिसाइड एंड सी फॉर योरसेल्फ. वो अपने आप को देखता है कि वाकई इसको कितना अफेक्टिव इसने लर्न किया है या नहीं किया. सो हियर आर सम, हमने बेसिक जो चीज़ें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किए थे, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस ऑब्जेक्टिव. सो हेड इज अ 14 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर. So first, the persistence. As I told in the previous slides, for the self-directive learning, persistence is very important. So we will learn detail about the persistence. So managing impulsivity, listening with understanding and empathy, 4, cooperative thinking, social intelligence, flexibility of thinking, metacognitions, accuracy and precisions. So 8 characteristics जो है, a sense of humor, questioning, drawing on past knowledge and experience, risk taking, using all the senses, creativity, wonderment. Persistence, मेन स्टिक टू टास्क अंटिल कंप्लीटेड. आपने जब एक दफा टॉपिक ले लिया है, आपने फिर डिसपॉइंटेड नहीं होना है. आपने ये नहीं सोचना है कि मैं पता नहीं कर सकूंगा नहीं, या आपको हेजिटेशन हो रही है, या आप यू हैव अ फियर टू गेट सक्सेसफुल. जब बाज लोगों को तक फियर होता है कि नहीं शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. यू ऑलवेज persistent to everything in your life, whatever you are in stage of your learning, mean to stick to task until completed, does not give up easily. ठीक है, आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ देना. has a systematic method of analyzing a problem, knowing where to begin, step to perform and data needed. So I quoted one quotations again. I love quotations because I always prefer to teach through the quotations or sharing their real life examples. So persistent, nothing in the world can take the place of persistence. दुनिया में कोई चीज भी persistence को replace नहीं कर सकती है. Once you are persistent personality, people will trust you. People आप पे ट्रस्ट, लोग स्टूडेंट आपके लर्नर आप पर ट्रस्ट करते हैं. उसने कहा टैलेंट विल नॉट, नथिंग इज मोर कॉमन देन द अनसक्सेसफुल मैन विद टैलेंट. उसने कहा कि आप टैलेंट भी कुछ नहीं है. ठीक है, अगर आप एक आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है लेकिन वो अनसक्सेसफुल है, तो दैट इज नथिंग, ये भी कुछ भी नहीं है. जीनियस विल नॉट, इवन द जीनियस, अनरिवार्डेड जीनियस इज ऑलमोस्ट प्रोवर्ब. आपने देखा उसके बारे में मुहावरे बोले जाते हैं कि क्या है अनरिवार्डेड जीनियस, जिसको कभी रिवार्ड, जिसको उसको कभी किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, तो ऐसे ही वो ऐसा ही जीनियस. ठीक है, सो परसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन अलोन आर ओमनीपोटेंट. मीन वो आपके पास क्या आपकी कुव्वत होती है, परसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी. ठीक है, ऑनेस्टी आपकी जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट. डिटर्मिनेशन क्या होता है, परसिस्टेंट टू योर टास्क, यानी कि आपने डिटर्मिनेशन का मतलब होता है ऑनेस्ट होना, क्वालिटी ऑफ ऑनेस्ट विद यू एंड विद योर वर्क. ठीक है, आपने उस पर डिटर्मिनेंट रहना है, आपने उस पर स्टिल फोकस करना है. परसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन अलोन आर ओमनीपोटेंट, मीन वो आपके पास एक पावर है. समझ आ रही है डियर स्टूडेंट? So managing impulsivity. थैंक यू सो मच. अब मैंने आपसे सुनना भी है, बहुत अच्छी. मैनेजिंग इम्पल्सिविटी, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग. आपने कोई भी चीज को क्या करता है ऐसे करना, बिफोर आपने कोई भी काम करने से पहले हमेशा सोचना है. फॉर्मिंग अ विजन्स ऑफ प्रोडक्ट, गोल,
डेस्टिनेशन बिफोर बिगिनिंग। कोई भी आपने विजन्स या कोई प्रोडक्ट है, कोई गोल है, कोई डेस्टिनी है, ठीक है, बिफोर द बिगिनिंग यू नीड टू ऑलवेज थिंक बिफोर। What we have to learn to do, we learn by doing। अरिस्टोटल का ये कोटेशंस है, उसने कहा है कि whatever we have to learn, आपने क्या करना है, learn by doing। ऑलवेज आपने चीजों को करके ही सीखना होता है। लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। आप जब भी किसी को समझें, सुने और समझें, आपने हमेशा दिल में दूसरों के लिए, लर्नर फॉर द, स्पेशली फॉर द लर्नर, यू ऑलवेज हैव एम्पैथी। टेक देम इन देयर प्लेस। सिंपैथी मीन होती है किसी की फीलिंग्स होना, ठीक है। एम्पैथी का मतलब होता है टेक अ पर्सन इन प्लेस ऑफ दैट पर्सन्स पेन, खुद को उसकी जगह महसूस करना है। डिटेक्टिंग क्यूज ऑफ फीलिंग्स और इमोशनल स्टेट, एम्पैथी। यानी कि आपने कोई भी उनको जो आप फील करते हैं, कुछ उनको ऐसा समझ रहे हैं या इमोशनल स्टेट है, तो आपने उसको क्या करना है, एम्पैथी देनी है। यानी कि उनको आपने टच विद टच, आपने उनको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से किसी की चीज को सुनना है। एक्यूरेटली एक्सप्रेसिंग अदर पीपल कॉन्सेप्ट। आपने अगले जो उन्होंने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, उनके कॉन्सेप्ट अपने एक्यूरेटली बताना, उनके इमोशंस को और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पैराफ्रेजिंग, क्लैरिफाइंग एंड बिल्डिंग अपॉन अदर वर्ड और इमोशंस। आपने क्या करना है कि आपने क्लैरिटी, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है क्लैरिफाई इन विद द क्लियर मीनिंग्स। आपने उसको पैराफ्रेज करना है, क्लैरिफाई करना, बिल्ड अपॉन अदर वर्ड्स और इमोशंस। Cooperative thinking, social intelligence, working effectively in group, teamwork, cooperative thinking. आपने always have a very courteous attitude with the other people, cooperate करना है, लोगों को सुनना है proper, ठीक है। social intelligence, work effectively in a group। आपने ये नहीं, कोई भी शख्स खुद से कुछ नहीं हो सकता जितना भी knowledge का। Here I quoted one quotation, Anatole France, an education is not how much you have committed to memory। क्या आपके पास कितना, आपके ज़हन में कितना आपने दिमाग में डाला हुआ है, और even how much you know, कितना आप जानते हैं। it is being able to differentiate between what you know and what you do not। ये उसने कहा है कि ये आप इजीली अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं। आप क्या जानते हैं, दुनिया में हर कोई शख्स हर चीज़ नहीं जानता है, ठीक है। ये नहीं कहना कि मेरे पास ही सब कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है। आपने सिंपली चीज़ों को देखना है कि जब अपने आप को अपना देखना चाहते हो कि मैं कितना, मेरे अंदर कितना टीम वर्क है, मुझे क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ मुझे नहीं आती, तो आपने हमेशा टीम में अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के कौन सी, किसके पास कुछ होगा एबिलिटी, किसी के पास कुछ एबिलिटी होगी, तो आपने ऑलवेज अपनी वो साइड लेनी जिसमें आपकी एबिलिटी, दूसरे को वो मौका दे जिसमें दूसरे का ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ऑलवेज डिफरेंशिएट टू हैव अ कोऑपरेटिव थिंकिंग एंड सोशल इंटेलिजेंस। Flexibility of thinking. In your thinking, you're not be rigid or very stick, ठीक है। You need to think outside the box। हमेशा अपने माइंड से हट के आपने सोचना है, ठीक है। Considering alternative point of view, dealing with several sources of information। पता पीछे से आवाज़ें आ रही, प्लीज। Considering alternative point of view, dealing with several sources of information simultaneously। कि आपने हमेशा एक चीज पे नहीं, आपने उसके ऑल्टरनेटिव को भी देखना है, डिफरेंट रिसोर्सेज में जाके इंफॉर्मेशन को सिमल्टेनियसली उसको क्या करना है, आपने गैदर करना है। द इलिटरेट कोटेशन ऑफ एल्विन टॉफलर, द इलिटरेट ऑफ द 21st century विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। उसने कहा 21st century के जाहिल वो नहीं होंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, बट दोज who cannot learn, unlearn and relearn। Metacognition, as I told you before, meta mean beyond and cognition mean mental actions or processes to acquire the knowledge, being aware of the step used to solve a problem। आपके पास इतना कि आप अपने नॉलेज से नॉलेज को क्रिएट कर सकें, थिंकिंग से थिंकिंग को क्रिएट कर सकें, ठीक है। मीन आपने बियॉन्ड किसी चीज़ को अपने माइंड स्ट्रक्चर से हट के अपने डेप्थ में सोचना, ऑल्टरनेटिव देखना, आउटसाइड द बॉक्स देखना है, सिक्वेंसिंग स्टेप, और आपने प्रॉपर स्टेप्स के जरिए जाना है, एंड मेकिंग अ प्लान ऑफ एक्शंस।
Accuracy and precision mean correct, accurate, very clear. Accuracy, reading directions, कि आप जब पढ़ें प्रॉपर पढ़ें. चेकिंग ओवर योर वर्क, अपने काम को प्रॉपर तरीके से चेक करें. प्रिसीजन ऑफ थॉट, अपने ख्यालात को खुद से चेक करें. ऑल आर रिटन कम्युनिकेशंस. प्रिसीजन ऑफ लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को भी देखें. से व्हाट यू मीन, कि आप जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है. A sense of humor mean आपके अंदर you need have ability to create a little fun, to get motivated with your learners, ability to perceive situations from an original and humorous point of view. आपने उस चीज को देखना, उसको मजाकिया तक समझना है. ठीक है, आपने उसको humorous point of view से देखना है कि रियल सिचुएशंस के अंदर उसके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं. क्लियर. क्वेश्चनिंग. The another self-directed learning characteristic is active problem solving. Inquisitiveness mean having a questions. के भी क्वेश्चन फॉर्म के इसमें भी आता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी कि आप क्वेश्चंस कर सकें, खुद को खुद से क्वेश्चन कर सकें, खुद से एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. आपके पास स्ट्रैटेजीज क्या है, क्या टेक्निक्स है. क्वेश्चंस आर क्रिएटिव एक्ट ऑफ इंटेलिजेंट. कि जब आपके पास सेल्फ क्वेश्चनिंग नहीं है, खुद को अपने माइंड को खुद से गाइड इन कर सकते. अपने माइंड को, यानी जैसे मैंने कहा कि मेटाकॉग्निशंस वेरी इंपॉर्टेंट. मेटाकॉग्निशंस में क्या होता है कि आपने अपने माइंड के, अपने नॉलेज से भी बियॉन्ड जाना है. यानी कि नॉलेज है तो नॉलेज से और नॉलेज प्रोड्यूस करना है. थिंकिंग है तो थिंकिंग की बेस पर और थिंकिंग को जनरेट करना है, क्रिएट करना है. तो ये क्या है, क्वेश्चनिंग आर द क्रिएटिव एक्ट ऑफ इंटेलिजेंट. फ्रैंक किंगडन. So I think last 2 minutes we will discuss in the last next lectures. Oscar Wilde के ये word हैं, उसने कहा है कि drawing on the past knowledge and experience. आप हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से लर्निंग है. लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, हमेशा हम पास्ट से लर्न करते हैं. टू रीग्रेड वंस ओन एक्सपीरियंस इज टू अरेस्ट वंस ओन डेवलपमेंट. जब हम अपने क्या कहते हैं, अपने तजर्बात को क्या करते से रिग्रेट होते हैं, तो इसका मतलब हम खुद की अपनी डेवलपमेंट को रेस्ट कर लेते हैं, अपनी ही डेवलपमेंट को रेस्ट करते हैं. ठीक है, तो हमेशा हमें अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग करनी है. ये नहीं करना कि मैं आज ही मेरा एक्सपीरियंस आपको शेम हो रहा है या आपको ऐसी कोई मतलब ऐसी फीलिंग्स हो रही है. यू नीड टू, इसका मतलब है कि आप अपनी लर्निंग को अरेस्ट कर रहे हो. ठीक है, इज इट क्लियर विद यू? Hope you understand well about the self-directed learning. We will continue